everyone, and welcome to our YouTube channel, Humanities Adda. I'm Amisha Gautam, and I have done my graduation in history from Delhi College of Arts and Commerce, Delhi University, and currently I'm pursuing Masters in History from Lady Shri Ram DU, and I'm also preparing for Civil Services Examination, UPSC. So we were doing this thing. We were doing. Just wait a minute. Just wait a second. We were doing challenges of nation building, class 12 political science. And we did lecture 1, that is challenges for nation, 3 challenges. This topic we have done. So today we are going to do this thing. This is lecture 2, and we are going to do partition, displacement, and rehabilitation. That will be the process of partition. So let us see what is there to read and to learn about. Okay, so here we are. This is your topic that we have to do today. Partition, displacement, and rehabilitation. So on 14th, 15th August 1947, not one, but two nation states came into existence, India and Pakistan. This is very much clear to everyone that when India got its independence, we know that not only it got its independence, it was also partitioned, है ना, and एक न्यू नेशन का भी बर्थ हुआ. पाकिस्तान का भी आप देखते हो कि बर्थ हुआ था उस टाइम पे. इट वाज आल्सो बोर्न, एंड दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. तो पार्टीशन हो गया था इंडिया का इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. अब आप आगे देखो, द ड्राइंग ऑफ द बॉर्डर demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history textbooks. तो यहाँ पे historical context की बात की जा रही है कि आपने history books में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा. And if we see in 12th history की अगर हम बात करें तो partition वाला chapter it's not coming this time, it's deleted. So we will have a little bit of the glimpse about this thing कि partition कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बहुत हम इसमें glimpse ले लेंगे, उसकी overview ले लेंगे basically. So drawing of the border, अगर हम border की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि माउंटबेटन प्लान जो आया था, जिसके बाद माउंटबेटन प्लान में ही आप देखते हो कि पार्टीशन की जो बात है वो कांग्रेस ने माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर ली थी. जो माउंटबेटन ने जो प्लान में जो प्रोविजंस थे उसको एक्सेप्ट किया था कांग्रेस ने. एंड उसमें आप देखते हो उसके बाद एक जो है बाउंड्री कमीशन बनाई गई थी, एंड बाउंड्री कमीशन को अपॉइंट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइरिल रैडक्लिफ. तो और उसमें आप देखोगे कि 2 मुस्लिम एंड 2 नॉन मुस्लिम जजेस भी थे उस कमीशन में. So these people were responsible for demarcating, the territory of the country India and Pakistan. And if you see the person Radcliffe, अगर आप Radcliffe को देखो, he was a Britisher, ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, एंड उनको कुछ आइडिया नहीं था इंडिया के बारे में. उस टाइम पे जो सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी, तो he had no idea. तो किस तरीके से उन्होंने बाउंड्री को डिमार्केट किया, क्या किया, that was a kind of, he created a blunder. And the report was ready by August 12th. तो इंडिपेंडेंस से पहले ही रिपोर्ट रेडी हो चुकी थी. 12th अगस्त तक ही, मतलब 12th अगस्त के अराउंड ही रिपोर्ट रेडी हो चुकी थी बाउंड्रीज से रिलेटेड. लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने, जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे, उन्होंने इंटेंशनली पब्लिक किया इसको आफ्टर 15th August. And why he did so that the responsibility of the consequences, जो उसके बाद जो consequences होंगे, मतलब कि इसके जो भी आपका जो रिपोर्ट में जो भी चीजें लिखी हुई थी, जो भी डिसाइड हुआ था, वो सब जब डिस्क्लोज होगा, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स के ऊपर ना आए.
इसलिए इसको इंडिपेंडेंस के बाद डिस्क्लोज किया गया। एंड व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस को अगर आप देखो तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? द कॉन्सिक्वेंसेस वर कम्युनल रायोट्स, है ना। एंड देखो कम्युनल रायोट्स बहुत ज्यादा हो गए थे उसके बाद, कम्युनल लाइंस पे ऑन बोथ द साइड्स, पाकिस्तान वाली साइड पे भी एंड इंडियन साइड पे भी, दोनों साइड पे ही काफी ज्यादा वायलेंस हो गया था। Now, next thing is that according to the two-nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindu and Muslims. That is why it demanded Pakistan a separate country for the Muslims. Now you see कि मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें, तो मुस्लिम लीग की अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें, तो मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन 1906, जब आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल वाली जब बात चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, देन इन 1906 मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एंड इट वाज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट। कांग्रेस के अगेंस्ट ये फॉर्म हुआ था। एंड बेसिकली इनिशियली जब ये फॉर्म हुआ था, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। तो इंडियन मुस्लिम्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मुस्लिम लीग जो है फॉर्म हुआ था। एंड दे यूज्ड टू क्लेम दैट वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। एंड देन आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद धीरे धीरे जो है अराउंड इन द 20th सेंचुरी, दैट मीन्स इन द 1900s, 1920 का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है, आप देखोगे कि कम्युनलिज्म जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एंड इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ एक साइड से ही ये बढ़ता है, दोनों साइड, बोथ द साइड्स वर रिस्पॉन्सिबल। in fact if we say the Hindus were also responsible and the Muslims were also responsible for the rising communalism. So आप देखोगे कि आर्य स्वराजिस्ट थे, तो वो उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। एंड शुद्धि मूवमेंट में ऐसा था कि जितने भी आपके जो हिंदूज थे जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट किया था, तो उनको वापस रिकन्वर्ट करवाया जा रहा था। एंड इन रिस्पॉन्स आप देखोगे कि तबलीग और तंजीम मूवमेंट्स जैसे जो है ये आपके मुस्लिम्स ने इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। एंड देन जब भी कुछ आप देखते हो कि नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे लोग, तो दे यूज टू टेक ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ हिंदू गॉड्स, हिंदू फेस्टिवल्स। जैसे आप देखते हो बाल गंगाधर तिलक के केस में हम देखते हैं कि उन्होंने गणेश फेस्टिवल का हेल्प ली थी। तो ये कुछ चीजें थी जिसके वजह से मुस्लिम्स आल्सो फेल्ट alienated at some times, and these all these factors led to the rise of communalism in the Indian subcontinent at that time. Okay, इंडिया में उस टाइम पे ये रीजंस तो थे ही थे। साथ में आपका सबसे बड़ा रीजन था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। बिकॉज इनिशियली जब 1857 का रिवॉल्ट होता है, उस टाइम पे आप देखते हो कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे मुस्लिम्स को एक सस्पिशन के साथ देखा था। बिकॉज एट दैट टाइम आप देखते हो कि मुगल्स वर स्टिल देयर, लास्ट जो रूलर था आपके बहादुर शाह स्टिल वहां पे थे, तो उनको एक तरीके से एलियन मतलब एक सस्पेशन की तरह देखते थे। लेकिन बाद में इन्होंने फिर अपनी पॉलिसी रिवर्स कर दी थी एंड दे ट्राई टू give something to the Muslims, and they try to win their support। एंड उनको फिर मुस्लिम्स को फिर हिंदूज के अगेंस्ट भड़काना, हिंदूज को मुस्लिम्स के अगेंस्ट भड़काना। तो ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी रही आपके ब्रिटिशर्स की, दैट प्लेड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन द राइज ऑफ कम्युनिटिज्म। सो दैट वाज द मेन कॉज। बिकॉज till 1857 you see that how the Hindus and Muslims, they were fighting united against the British front. And after that, when the Britishers realized that they have to break this unity, and they were they were very successful in doing that. So that is the point where the rise of communalism started. Okay, and ये जो आपका जो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है कि जो टू नेशन थ्योरी है, ये भी कहीं आउट ऑफ एकदम अचानक से सडनली नहीं आ जाती है। इट वाज आल्सो वेरी ग्रेजुअली आप देखते हो कि इवॉल्विंग थ्योरी थी। बिकॉज आप देखोगे इनिशियली आप देखोगे कि मुस्लिम लीग अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करती थी कि देवर
they are minority people. Sorry, Muslims, they consider themselves that they are minority people and they need protection. Okay, and who were the protector? The Muslim League was the protector of them. But gradually they started seeing themselves as a separate nation. और फिर वही होगा कि धीरे धीरे करके इनकी डिमांड जो है पाकिस्तान की, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी. एंड बाय द 1940s के टाइम तक आप देखते हो कि ये डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. Now, the Congress opposed this theory and the demand for Pakistan. तो कांग्रेस जो है इस थ्योरी के अगेंस्ट थी. इनफैक्ट गांधी वाज आल्सो अगेंस्ट दिस थ्योरी. जो पाकिस्तान की डिमांड थी, दे डिड नॉट वांट दिस पार्टीशन. लेकिन आप देखोगे कि सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो आपको 1940s में देखने के लिए मिलते हैं, और रायोट्स हो जाते हैं आपके बहुत सारा, और फिर मुस्लिम लीग का भी काफी प्रेशर रहता है. And there was political competition also between the Congress and the Muslim League, because आप देखते हो कि elections and all जो council के चलते रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये इनका जो political competition था, that was also there. And the British role obviously led to the decision for the creation of Pakistan. And why? And there is one thing, that the partition was inevitable, मतलब ये होना ही होना था. एंड वाई द कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन, एक ये भी था, एक ये भी है कि क्यों इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. बिकॉज आप देखते हो कि कांग्रेस ने जब देखा कि एक लंबे समय से ये ट्राई कर रहे थे कि मुस्लिम मासेस को नेशनल मूवमेंट में इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, बट दे वर नॉट एबल टू डू सो. ठीक है, मुस्लिम्स क्या हो रहे थे कि ये अलग अपनी मुस्लिम लीग को फॉलो कर रहे थे. दे वर नॉट कमिंग इनटू द मेन नेशनल मूवमेंट वाली जो आपकी आप बोल सकते हो जो मेन नेशनल मूवमेंट वाला फ्रंट था, या फिर जो मेन नेशनल मूवमेंट जो चल रही थी उसमें ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे. एंड दे वर ट्राइंग टू स्टे अवे फ्रॉम द कांग्रेस. ठीक है, तो उसके कारण भी आप देखते हो कि एक फेलियर वाली फीलिंग जो है वो कांग्रेस को फील हुई. एंड देन एक और चीज थी कि माउंटबेटन के प्लान में एक ये प्रोविजन था कि इफ द पार्टीशन विल टेक प्लेस, then the princely states will not have the option for independence. Either they will have to join India or will have to join Pakistan. तो एक उस टाइम पे आप देखोगे कि इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको यूनिटी चाहिए थी. सो भले पार्टीशन हो जाता, कम से कम इतना, भले पार्टीशन हो जाएगा, कम से कम इतना तो ये रहेगा कि इंडिया की यूनिटी मेंटेन करके रहेगी, कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे विल नॉट बी फ्री, मतलब वो इंडिपेंडेंस गेन नहीं कर पाएंगे. सो दैट वाज दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम, बिकॉज आप देखते हो कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड यूनिटी वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज व्हाई एट द एंड कांग्रेस हैड टू अग्री टू दिस प्रपोजल ऑफ माउंटबेटन, और पार्टीशन को के लिए भी उनको अग्री करना पड़ गया था. So this was in short, you can see, the story of partition. Otherwise, if we go in detail, there is a very long story. Everything has very detailed. हमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें जो आपको डिटेल में भी पढ़नी पड़ती हैं. लेकिन we are not going into detail. This was just a summary of all of this, all of this process. कि टू नेशन थ्योरी है आपकी जो, और मुस्लिम लीग ने कैसे इसको आगे किया. इनफैक्ट जिन्ना वाज earlier, he was very kind of, he stood for the unity of Congress and Muslim League, but बाद में आप देखते हो कि कुछ differences arise हो जाते हैं, and then he started demanding कि अलग नेशन चाहिए. तो वो काफी चीजें हैं. There were several factors and one of the most important factor हमने देखा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी रहती है. ठीक है, आप देखोगे कि हम जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रोसेस ऑफ पार्टीशन. प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पार्टीशन कौन से प्लान के बाद होता है. तो हमने देखा कि माउंटबेटन प्लान है, जो वाइसरॉय थे उन्होंने एक प्लान वो किया था, प्रपोज किया था, दैट वाज माउंटबेटन प्लान. उसके अकॉर्डिंग आपका पार्टीशन होता है. Now, thus it was decided that what was still then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan. अब दो कंट्रीज में ये डिवाइड हो जाएगा. Then such a division was not only very painful but also very difficult to decide and to implement. तो ये एक तरीके से पेनफुल तो था ही. पेनफुल अगर आप देखोगे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, बिकॉज इस टाइम पे जो सेपरेशन हुआ तो आप देखते हो वायलेंस होता है, फैमिलीज गॉट सेपरेटेड, सेपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड देन आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेलवेज है, रिसोर्सेज है, एवरीथिंग गॉट सेपरेटेड. एंड इफ यू गो टू you just go to YouTube and search this,
the stories of partition, then you will see that you will come up with many stories, and there are many people who will they are telling their own stories, that how they got separated from their own family members and they haven't seen them since that time period. So it is very painful to hear those stories and the stories of that violence. So it was painful but also very difficult to decide and to implement. तो एक तरीके से डिफिकल्ट भी था ये डिसाइड करने, डिसीजन के लिए, और इसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। तो हमने यहाँ पे देखा कि हम रिलीजियस मेजोरिटीज को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज, कि रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे डिवीजन होगा। दिस बेसिकली मींस दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी वुड मेक अप द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, द रेस्ट वाज टू स्टे विद इंडिया। तो मतलब कि जहां पे आपकी मुस्लिम की मेजोरिटी आपको दिखेगी, जहां जिस एरिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन आपको दिख जाएगी, वो वाली एरिया को हम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान बनाएंगे, और बाकी जो एरिया है वो इंडिया में रहेंगे, ठीक है। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल, आइडिया हमें सिंपल लग रहा है कि चलो कुछ करना तो है नहीं हमें, जहां पे आपकी मुस्लिम मेजोरिटी है जिस एरिया में, वहां उसको हम पाकिस्तान बना देंगे। लेकिन बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, बट यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज भी देखने के लिए मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आपकी ये हो गई कि एक कोई सिंगल बेल्ट नहीं थी मुस्लिम मेजोरिटी की ब्रिटिश इंडिया में। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं कि सिंगल बेल्ट नहीं है, अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, अलग अलग रीजन में, मतलब अलग अलग बेल्ट है मुस्लिम मेजोरिटी। सो अगर हम देखेंगे कि उस टाइम पे तो देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, दो एरियाज ऐसे थे जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी काफी ज्यादा थी, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। तो एक आपके वेस्टर्न एरिया में आपको हो गया जो आपका प्रेजेंट डे पाकिस्तान है जिधर, एंड वन इन द ईस्ट जो अभी आप जहां प्रेजेंट डे अभी आपका बांग्लादेश है। There was no way these two parts could be joined, तो कोई एक ऐसा तरीका नहीं था जिसको आप इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, उठा के तो इधर से आप उसको वहां रख नहीं सकते बिकॉज बीच में आपका इंडिया है। सो इट वाज डिसाइडेड दैट द न्यू कंट्री पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज। तो ये डिसाइड किया गया जो न्यू कंट्री है आपकी पाकिस्तान जो बनेगा वो उसमें आपके टू टेरिटरीज होगी, वेस्ट होगा, एक वेस्ट पाकिस्तान होगा एंड ईस्ट पाकिस्तान होगा, that will be separated by a long expanse of Indian territory. So इंडिया के वेस्ट में भी पाकिस्तान एंड इंडिया के ईस्ट में भी पाकिस्तान। It was decided like that. Now secondly, the second problem that was there, not all Muslim majority areas wanted to be in Pakistan. अब सारे मुस्लिम ऐसे तो नहीं है कि हर मुस्लिम को पाकिस्तान में ही जाना था, some people were there, those who did not want to be part of the Pakistan, they did not want to be the part of the Pakistan. So for instance, we take example of Khan Abdul Ghaffar Khan, the undisputed leader in the northwestern frontier province. So northwestern frontier province जो है आपका वो वेस्ट वाले रीजन में ही है, हुआ करता था, and he is also known as the frontier Gandhi, and he was staunchly opposed to the two nation theory. तो खान अब्दुल गफार खान जो थे आपके, ये काफी एक अच्छे नेशनलिस्ट एंड एक लीडर हुआ करते थे। तो इनको अगर आप इनकी बात करोगे तो ही डिड नॉट वांट टू जॉइन द पाकिस्तान, एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता था, एंड ही वाज अपोज्ड टू दिस टू नेशन थ्योरी। Now eventually his voice was simply ignored, इनकी वॉइस को सिंपली इग्नोर कर दिया गया, और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है उसको फिर मर्ज कर दिया गया था पाकिस्तान के साथ। तो आप देखोगे कि अनविलिंगली हिज प्रोविंस आल्सो had to merge with Pakistan. Now the third problem that existed, the third problem was that two of the Muslim majority provinces of British India, Punjab and Bengal had very large areas where non-Muslims were in majority. अब देखो, आप जो थर्ड प्रॉब्लम थी ना कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जैसे कि पंजाब एंड बंगाल, ये दो जो रीजन थे, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे भी एरियाज थे जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स भी मेजोरिटी में थे,
मतलब मुस्लिम मेजोरिटी तो थी ही थी, इसके अलावा आप देखते हो कि नॉन मुस्लिम्स भी मेजोरिटी में थे. नाउ इवेंचुअली इट वाज डिसाइडेड that these two provinces would be bifurcated according to religious majority at the district or even lower level. तो ये इसमें डिसाइड किया गया था कि जैसे पंजाब का केस ले लो, तो पंजाब को हम लोग डिवाइड कर देंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तो उससे भी लोअर लेवल पे, एंड देन ये डिवीजन रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे होगा. तो जो मुस्लिम मेजोरिटी होगी वो पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी, और जो बाकी नॉन मुस्लिम मेजोरिटी होगी दैट विल जॉइन इंडिया. ये डिसीजन हुआ था. सिमिलर डिसीजन वाज टेकन फॉर बंगाल. लेकिन दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. It meant that a large number of people did not know on the day of independence whether they were in India or in Pakistan. So this was very sad. Okay, so उनको पता ही नहीं था कि कौन सी कंट्री का पार्ट है वो. The partition of these two provinces caused the deepest trauma of partition. ये जो दो provinces का partition हुआ, इस पार्टीशन ने बहुत ही ट्रॉमा क्रिएट किया. बहुत ही वायलेंस हुआ, बहुत ही रायट्स हुए. सो ट्रॉमा क्रिएट कर दिया इस पार्टीशन ने, मतलब इन दो प्रोविंसेस के पार्टीशन ने. नाउ दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट इंट्रैक्टेबल ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन. अब देखो, अब जो हम देख रहे हैं कि अब फोर्थ प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे. दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज. अब हम मेजोरिटी की तो हमने बात कर ली, हमने मुस्लिम मेजोरिटी की बात कर ली, हमने नॉन मुस्लिम मेजोरिटी की बात कर ली. But now we are going to talk about the minorities on both the sides. Now see, this was the problem of minorities on both sides of the border. Lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and equally large number of Muslims on Indian side of Punjab and Bengal. ठीक है, इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल, क्योंकि देख रहे हो कि पंजाब एंड बंगाल को भी डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी. तो आप देखोगे कि एंड टू सम एक्सटेंट हम देखते हैं दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज में भी थे. कौन से ये लोग हैं? माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है इन दी इंडियन साइड, और आपके हिंदू एंड सिख्स हैं जो आपके पाकिस्तान साइड में है, माइनॉरिटी है ये लोग. ठीक है, दे फाउंड देमसेल्व्स ट्रैप्ड. अब ये लोग वहां पे फंस गए, और उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत ही ज्यादा वायलेंट कम्युनल रायट्स हो रहे थे, और वायलेंस बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था. पार्टीशन हो तो गया था, लेकिन उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतना ज्यादा वायलेंस होगा. दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम, इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज. आप देखो कि ये लोग और इनके एंसेस्टर्स उस रीजन में, उस जगह पे इतने सेंचुरीज से, इतने सालों से रह रहे थे. ठीक है, लेकिन अब सडनली अब वो लोग वहां पे अनडिजायरेबल बन चुके हैं, एलियंस हो चुके हैं, एंड नाउ दे हैव टू लीव दैट प्लेस एंड दे हैव टू मूव. सो पाकिस्तान वाले जो आपके माइनॉरिटी लोग थे, फॉर इंस्टेंस जो आपके हिंदू एंड सिख्स थे, दे हैव टू मूव बैक टू इंडिया. एंड इंडिया वाले जो आपके मुस्लिम्स थे, दे वर trying to move to Pakistan, and while they were moving they were attacked, they were killed, and they were women were there, they were raped, they were converted, married. तो बहुत सारी जो आपको इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं, बहुत कुछ देखने के लिए मिला. एंड अराउंड 4 to 5 lakhs people were killed. इस तरीके की सिचुएशन अराइज हो गई थी. And as soon as it became clear that that the country was going to be partitioned, the minorities on both sides became easy targets of attack. अब देखो, ऐसे जब क्लियर हो गया था कि पार्टीशन तो होने ही वाला है, तो आप देखोगे कि माइनॉरिटीज जो बोथ साइड्स पे थे, वो आपके इजी टारगेट्स ऑफ अटैक हो गए थे. अब उन पे अटैक होने लगा था, बिकॉज उस साइड की जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, उन्होंने हिंदूज और सिख्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, और इधर वाले जो आपकी मुस्लिम माइनॉरिटी थी इंडियन साइड पे, उन पे हिंदूज ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था. नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम. तो किसी ने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसी प्रॉब्लम भी अराइज होगी. नो वन हैड एनी प्लान्स फॉर हैंडलिंग दिस. किसी के पास कुछ प्लान नहीं था इस चीज को हैंडल करने के लिए. Initially, the people and political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon, but very soon the violence went out of control.
इनिशियली उन्हें लगा कि टेम्पररी वायलेंस है, कंट्रोल हो जाएगा सून, लेकिन आप देखोगे कि ये जो वायलेंस है दैट इट वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. The minorities on both sides of the border were left with no option to except to leave their homes, often at a few hours notice. तो जब ये वायलेंस होने लगता है, जब वो अटैक का एक तरीके से आप देखो कि टारगेट बन जाते हैं अटैक की, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. वो अपना घर छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, और फिर अपने जैसे पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आने लगेंगे, और इंडिया वाले जो है वो पाकिस्तान की तरफ मूव करने लगेंगे. तो वही एक उनके पास ऑप्शन रह गया था. So this is it for today. This was part of the lecture 2. We will be doing in lecture 3 the consequences of partition. Thank you for watching. If you like this lecture, please like this video, share it with your friends, and do subscribe to our channel. I'll be covering the uh, syllabus of political science for term 1. I hope you like this video. Keep studying. Thank you for watching and take care.